Well, now this is a parallel combination of the cells, and we can see that this I current is flowing through these two cells. So there must be some potential difference between B1 and B2 because of this cell C1 and because of this cell C2. So because we can see here that this is E1 and this is R1, this is E2 and R2 be the EMFs of the first and second cell respectively. ठीक है? And let us see thus total I which has been divided into these two parts can be written in this fashion. You can see here this total current is being divided into the two parts. This is for cell C1 and this is for cell C2. So potential difference that we are seeing across B1 and B2 is V equals to VB1 minus VB2, alright, which is going to be your epsilon 1 minus I1 R1. Why? Because we are just only considering the first cell for the first case. Now potential difference across B1 and B2 is V equals to VB1 minus VB2 for the second cell. This is यहाँ पे आप लिख दीजिए है ना, for first cell, alright, and this is for second cell. ये आप जो कर रहे हैं आप सेकंड सेल के लिए कर रहे हैं, ठीक है? So VB1 minus VB2 is equals to this is going to be I2 R2. इतना समझ में आ गया आपको? अब आप एक चीज आराम से देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम I1 I2 निकाल लें तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम रख सकते हैं इसको. So यहाँ पे आप देखिए V is equals to, चलिए यहीं पे हम निकाल के इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आप इतना समझ लीजिएगा, है ना? देखिएगा I is equals to I1 की प्लेस में हम कैसे रख सकते हैं इसको? This is V is equals to E1 minus I1 R1. So E1 minus V इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए E1 minus V divided by R1. This is for I1, ठीक है? And now for the second case you will get this epsilon 2 minus V divided by this R2. Got it? इतना समझ में आ गया? अब देखिए आगे केस करते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कि इस केस में यदि आप सेपरेट करें इसको तो आपको क्या मिलेगा? This is E1 divided by R1, है ना, minus V divided by R1, okay, plus E2 divided by this R2 minus V divided by R2. इतना समझ में आया? अब देखिए इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं और इन नेगेटिव वालों को एक साथ लेते हैं. तो इस केस में क्या हो जाएगा? E1 divided by R1 plus E2 divided by R2 माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा? V भी आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे V की यदि कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा अंदर क्या? 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? इतना समझ में आ गया? इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं. इसको रब करता हूं मैं. This is for first cell, this is for second cell, and using this first equation we have added these two, है ना, I1 and I2. So we can solve this, and this is what we are finding out. This is total I. This is total I, and when you calculate it by solving by taking LCM of it, so you will have this E1 R2, this E2 R1 divided by R1 R2 minus V into this is R1 R2 plus R1. इतना समझ में आया? अब आप देखिए यहाँ पे R1 R2 जो है that is common in both, so multiply on this side, है ना? और यहाँ पे भी हम जो देख रहे हैं R2 plus R1, इससे हम चलिए कॉमन लेते हैं दोनों से, लेकिन इसमें ये टर्म है ही नहीं, R2 plus R1 इसमें टर्म है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? आपको इतना पता होना चाहिए. देखिए मैं इसको लिख रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा.
यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मैंने इससे कॉमन लिया, इसे कॉमन लिया और इसको नीचे शिफ्ट किया इधर, लेकिन यहाँ पे ये वाला कोई टर्म था ही नहीं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप? तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑलरेडी इधर शिफ्ट हो चुका है बिकॉज वी हैव टेकन कॉमन ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। नाउ अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो v इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, v इक्वल्स टू दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 divided by this R2 plus R1 या फिर R1 plus R2, whatever you want, and this is going to be shifted on this side, so I R1 R2 divided by R1 plus R2। इतना समझ में आया? अब देखिए, this is your equivalent and this is your R equivalent, this is your equivalent and this is your R equivalent. Let me write here by telling you this E equivalent is equals to this is R2 plus R1 and your R equivalent is going to be R1 R2 divided by R1 plus R2। इतना समझ में आया? अब आप देखिए आगे क्या होता है। When you see your this equation, you got an idea, thus आप इसको इक्वेशन नंबर कौन सा देंगे, 4 वाला, ठीक है। अब देखिए, this can be written as V is equals to E equivalent minus I R equivalent। इतना समझ में आ गया? This is your R equivalent and this is your equivalent. So you can write E equivalent divided by R equivalent. You will get an expression which can be written as R equivalent. What will you get? This is E1 R2 plus E2 R1 divided by R2 plus R1. When you divide this by this, R1 R2 R1 plus R2, this is going to be cancelled out. So you remained with this, and this expression can be write like this. This is your this expression plus this is your, and can be written as R1 R2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप सेपरेट करिए। आपने 8th 7th या 8th क्लास में इसको पढ़ा है। E1 R1 डिवाइडेड बाय दिस R1 R2 प्लस E2 R1 divided by R1 R2. All right, so this is going to be cancelled out, and this is one thing we missed, I think. This is R2. All right, so this is R2, this R2 will be cancelled out. You remained with expression which is E1 divided by R1 plus E2 divided by R2, equivalent divided by R equivalent. If you have n number of cells, so there will be plus epsilon 2 epsilon 3 upon R3 dot 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 epsilon n upon Rn. All right, so as we had the case for the capacitors, we had for capacitor for the resistors. Similarly, this is case for the cells. We can have two types of combination, series combination and parallel combination, and we can find equivalent value of the EMF and internal resistance of the cell. Let me write for n number, for n cells. यदि आप n cells के लिए लिखना चाहते हैं, so your R equivalent
is going to be, this is R1, this is E2 R2 dot 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 En Rn. That's fine. Yes students, now the Kirchhoff's law, first law, which is called the junction law or the current law. This is for the, no, this first law is also called junction law or the current law. Let me tell you one thing, that its a statement says that in any junction the algebraic sum of all the currents is equals to 0. मतलब कि sum of current entering is equals to sum of current leaving the junction. मतलब कि कुछ जितना करंट जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा ना, तो वही तो जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द current which is coming out of the junction that will be taken negative. So let us see, or one more thing, that it is totally based on conservation of charges, क्योंकि जितना किसी जंक्शन में चार्ज जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, ठीक है. सो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो समेशन ऑफ आई, यदि सबका हम सम करें, जितना अंदर आ रहा है जंक्शन के और जितना बाहर जा रहा है उन सबका सम करें, क्योंकि मैंने बताया कि जो एंटर कर रहा है जंक्शन में दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड which is leaving the junction will be taken as negative. When you sum all the currents, definitely plus minus will be cancelled out, will get 0. The summation of total I will be 0. So let us understand the distribution of current with the help of first law. If we have this current is entering to the junction, this is junction point A, तो यहाँ से करंट आप देख रहे हैं 3 एम्पियर का आ रही है, यहाँ पे 2 एम्पियर एंटरिंग कर रही है जंक्शन में. सो दैट यू विल गेट फाइनल कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, एंटरिंग द जंक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर. कितना हो गया यहाँ पे, इस एरिया में ए से बी के रीजन में कितनी करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर. और यदि हमको यहाँ दिया गया है कि 1 एम्पियर आपकी करंट बाहर निकल रही है, तो यहाँ कितना बचेगा, मैंने क्या बताया, करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से इस 1 को माइनस करना पड़ेगा. सो यू विल गेट 4 एम्पियर ओवर हियर. इतना समझ आ रहा है. और इस जंक्शन पॉइंट सी, अब इस जंक्शन पॉइंट सी पे देखिए, यहां से करंट एंटर हो रहा है और यहां से करंट एंटर हो रहा है. तो एंटरिंग विल बी टेकन एज पॉजिटिव, यू विल सम इट. सो 4 और 2 6 एम्पियर. तो यहां पे क्या जाएगा, 6 एम्पियर. अब कहां पहुंच रहे हैं हम, पॉइंट डी जंक्शन पे, ठीक है. 6 एम्पियर यहां पे सी से डी तक फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो करंट जो बाहर जा रहा है, हम मान लीजिए उसको ले रहे हैं 2 एम्पियर हमारा करंट बाहर जा रहा है. तो यहां पे कितना करंट फ्लो हमको मिलेगा, क्योंकि ये बाहर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा. 6 - 2 विल बी टेकन एज 4 एम्पियर. सो नेट हमको कितनी करंट मिली, 4 एम्पियर, जो कि हमारे किसी दूसरे, यहाँ पे कोई दूसरा जंक्शन हो सकता है, यहाँ की तीसरे जंक्शन हो सकता है. तो ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ. सिंपल आपको ये समझना है, किसी भी जंक्शन में यदि एंटर हो रहा है करंट, यू विल टेक that current as positive and which is leaving the junction will be taken as negative, those which is based on the conservation of charges. Okay, now second law, in any loop और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी लूप आप लीजिए, तो उस सर्किट में जो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, हर एक पॉइंट मान लीजिए कई सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं किसी भी लूप में या फिर किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, sum of all the potential differences, जैसे यहाँ पे जैसे हम summation of all the current कर रहे थे, so it is also called a voltage law or the loop law. क्या बोलते हैं इसको, voltage law या फिर loop law बोलते हैं. तो ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी सम होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस का अक्रॉस द डिफरेंट एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उन सब का यदि पोटेंशियल डिफरेंस का सम लिया जाए, so that must always be equals to 0. The sum of all the potential differences will be 0, which is stated as second law or the voltage law or the loop law of the Kirchhoff's. We will use it in the upcoming videos, that how these two laws are very important in the distribution of current and the potential differences within the circuit or the electrical loop or any kind of junction. So this is all about Kirchhoff first and second law. Students, we are now discussing our next topic, that is Wheatstone bridge. You can see this diagram we have used in the battery here, and this is positive terminal, this is negative terminal. So your always current flow from the higher potential to the lower potential, as you know, as I already told you this thing.
So this current will start flowing from this positive end to the negative end in such fashion. So you can see this at terminal A and at terminal B, there will be some potential difference, and we can see here this I current which is flowing from this, let the current be I. So here at point A, after it has been divided between it has been divided into the two parts, I1 and through resistance R1 and I3 through the resistance R3. And here we have used a galvanometer and we are using a balancing principle here. What do you mean by balancing principle? You will be thinking this thing, है ना? So I am telling you, when your potential of this C, जब आपका पोटेंशियल C का और D का सेम हो जाएगा। अच्छा, आप एक मुझे बात बताइए, क्या आप यदि आपका यहाँ का पोटेंशियल और यदि यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाए, so can you think that any current will flow from here or here to here? No. When your potential are same, there must not be any kind of current in that particular circuit. So यदि यहाँ C और D में आपका पोटेंशियल बैलेंस्ड है, आपका पोटेंशियल सेम है, so you cannot have current on this through this galvanometer. Let me tell you, this galvanometer has a range, has a particular range to measure the current. Basically, it measures a current of very small magnitude. It measures a current of microamperes or the milliamperes, depending on the maximum capability of the galvanometer as it is prescribed on the particular apparatus. तो ठीक है, यदि गैल्वेनोमीटर आपको दिया गया तो उसका एक मैक्सिमम आपको रेंज उसमें दिया गया कि कितना ये करंट बियर कर सकता है। सो यदि उससे आप ज्यादा दे दिए तो क्या होगा, मैक्सिमम रेंज है, उससे यदि आप ज्यादा देंगे तो दैट विल ब्रेक डाउन। ठीक है, उसका जो एक सुई इस तरीके से, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सुई होती है जो कि at I is equals to 0, it will be at 0, but when your current from this end to this end, so it will move to this side, this positive, है ना? When your current moving is from this to this side, upper to lower, then your, है ना, to minus, alright? तो इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर का जो है एक सुई रहती है वो इस तरीके से इधर उधर कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन यदि डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड जो है ज्यादा हो गया एक प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू से, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक सर्किट में बैलेंसिंग कंडीशन को समझना ये पच नहीं रहा है। आप सोचो कैसे, देखो यहां पे मैंने बोला क्या, वी आर अरेंजिंग आवर रेजिस्टर्स इन सच अ फैशन that your value of C and value of D for the potential value for C and D must be equal. ऐसा इक्वल इसलिए करना आपने को क्योंकि यहां से करंट I यदि फ्लो हो गया तो उस कंडीशन में योर दिस पोर्शन विल नॉट बी बैलेंस्ड विद दिस, बैलेंस्ड नहीं होगा। लेकिन यदि आप यहां का पोटेंशियल यदि डिफरेंट हो गया तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सब करंट, है ना? यदि कुछ करंट होगा तो इसकी जो वैल्यूज है इस पोर्शन के और इस वैल्यू की पोर्शन की जो वैल्यूज है दैट इज गोइंग टू योर टोटल करंट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। तो यदि यहाँ पे आपका I 0 हो गया तो ये यहाँ का करंट है, यहाँ का करंट, और जो इधर करंट जाएगा R2 और R4 से, दैट विल बी, जैसे I3 इधर से फ्लो होगा तो I3 इधर भी जाएगा क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है इसके, तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो होगी, योर I1 विल फ्लो टू दिस साइड एज वेल। ठीक है, सो योर Wheatstone bridge gives R1 upon R3 this portion by R2 divided by R4। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R1 divided by R2 equals to R3 divided by R4। ये उन्होंने किरचॉफ ने प्रूफ करके दिखाया, इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे करंट के, मतलब कि हम इसमें देखिए आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज करते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करते हैं, तो यहाँ पे हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन रूल को, है ना, जिससे हम बोलते हैं कि सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड सम ऑफ करंट एंड लीविंग मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। So the net current summation of I equals to 0. So
यदि हम यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन को इसको यहाँ लिख लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाय R4, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, नाउ फॉर दिस टू प्रूव we have to consider two different circuits. Let us consider this part, and after that let us consider second part. So if you consider first part, A C D A, यदि आप ACDA को लेते हैं तो उस केस में I1 R1, यदि इस तरीके से आप करंट का सर्किट लेते हैं इस तरीके से, है ना, तो आप देखिए I1 R1 माइनस, क्योंकि इसका देखिए डायरेक्शन जो करंट की इस तरीके से है ना, तो आप डायरेक्शन जो देख रहे हैं आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, है ना, सो इट विल हैव माइनस साइन, सो I3 R3 इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया? तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? I1 अपॉन I3 कैसे लिखा मैंने, देखिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे, I1 अपॉन I3 कर दिया मैंने डायरेक्ट, और I3 डिवाइड बाय R1। This is first equation. Now let us consider our second this loop. This is CBDC. CBDC. यदि CBDC आप कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं? Because IC current is 0, so this term will be 0. IC का जो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे करंट को आई को हमने क्या करते हैं 0 बाय बैलेंसिंग दीस टू पॉइंट्स, ठीक है, बैलेंसिंग द पॉइंट्स ऑफ C एंड D. सो आवर CBDC, लेट अस सी दिस, I1 R2, I1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे करंट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए I1 करंट यहाँ जा रही है, वही I2 करंट यहाँ भी आएगी। सो I1 R2, फिर इसके बाद आप इधर आइए, द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज अपोजिट टू इट, सो इट विल हैव माइनस साइन, माइनस I3 R4। इतना समझ में आया? देखिए कुछ नहीं किया, I1 R2 और फिर इससे लूप, अब देखिए ऐसे जाएंगे अपन, क्योंकि इधर से आपने CBDC लिया है, सो I1 R2, फिर इसके बाद I3 R4, लेकिन द डायरेक्शन इज अपोजिट टू इट, सो इट विल हैव नेगेटिव साइन। समझ में आ गया? अब देखिए इधर को हमने कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि IC करंट 0 है, बैलेंसिंग कंडीशन वी आर यूजिंग, है ना, बैलेंस्ड ब्रिज हमने फॉर्म किया है बाय, ऐसा फॉर्म कैसे करेंगे बैलेंस्ड? बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टर्स। आप रेजिस्टर को जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे वैसे आपको ये IC की वैल्यू इस तरीके से अरेंज करना है कि R1 R2 R3 4 की वैल्यू, क्योंकि IC करंट क्या हो जाए, सो द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ इसको भी उधर शिफ्ट करिए, I1 अपॉन क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I3, जैसे इसको किया ना, इसको उधर शिफ्ट करेंगे आप, सो I1 अपॉन I3 एंड R4 अपॉन R2 जाएगा इक्वल्स टू R4 अपॉन R2। इतना समझ में आया? इसको सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। किरचॉफ्स ने कौन सा स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट से क्या बोला बैलेंस्ड ब्रिज के, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। सो लेट अस प्रूव इट। I1 अपॉन I3 दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड का, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखिए आप, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के हैं इक्वल है, सो R3 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R2, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 डिवाइडेड बाय R3 is equals to R2 divided by R4, या फिर इसको आप इधर कर सकते हैं, इधर इसको इधर कर सकते हैं। This is what we actually wanted to show, ठीक है। तो आपको ये this is the condition of the balanced bridge you got, है ना। So this is basically which your Wheatstone bridge says, balancing principle, R1 upon R3 equals to R2 upon R4, या फिर R1 upon R2 is equals to R3 upon R4, ठीक है। This is balancing condition for resistors, है ना, using balancing principle।